السلام علیکم، سچ نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے کورونا وائرس کے خطرات کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل کر دی ہے۔ قوم سے خطاب میں کہا اپنے فرائض سے غافل نہیں، حکومت وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور افراتفری پھیلنے سے زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ پورا لاک ڈاؤن کا مطلب ملک میں کرفیو لگانا۔ کرفیو کا مطلب یہ کہ شہریوں کو گھروں میں بند کر کے اور پولیس اور فوج کے ذریعے پہرا دینا تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں، جو فرانس کے ہیں، جو امریکہ کے ہیں، انگلینڈ کے ہیں، میں آج پورا لاک ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جس کا مطلب وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ آج اگر میں پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے، چھابڑی والے، ریڑی والے، ٹیکسی والے، چھوٹے دکاندار، دیہڑی والے، یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے۔ اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ 2 ہفتے تک گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ ادھر سندھ حکومت نے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ شہریوں کے بلا ضرورت گھر سے نکلنے پر پابندی ہوگی، صرف کریانہ اور میڈیکل اسٹورز ہی کھلے رہیں گے۔ اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی ہے، اس لیے کہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت جلدی ٹرانسفر اور ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، تو ہم لوگوں کا میل جول کم سے کم کریں۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج رات کو 12 بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ سارے دفاتر، جو اجتماعات کی جگہیں، شاپنگ سینٹر، سکولز وغیرہ تو ہم پہلے ہی بند کر چکے ہیں، یہ سب بند ہوں گے۔ غیر ضروری لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے باہر نکلنا ہے تو اس کے پاس کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے۔ ہماری حد الامکان کوشش ہوگی کہ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں میسر ہوں اور ان کی قیمتیں بھی کنٹرول ہوں۔ دکانوں پہ یہ اشیاء میسر کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ملک میں لاک ڈاؤن کر دوں تو غریب بھوکا مر جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ میں رات 12 بجے سے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ بلا ضرورت گھر سے نکلنے پر پابندی ہوگی۔ ملک میں آخر چل کیا رہا ہے، دیکھیے یہ رپورٹ۔ احتیاطی تدابیر اپنائیں، کورونا سے جان چھڑائیں، لیکن ملک میں چلنے والے 2 مختلف احکامات نے عوام کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ کورونا کے خلاف کون ہے، کورونا کے حق میں کون ہے؟ غریب آدمی کہتا ہے کورونا سے بچ گئے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ حکمرانوں کو لگتا ہے اگر غریب کا سوچا تو سیاسی موت مر جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن نہ کرنے کی وجہ ملک میں وسائل اور نظام کی کمی ہے۔ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کیا تو غریب بھوکا مر جائے گا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کورونا کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن ضروری ہو گیا ہے، غریب کے کھانے کا بندوبست ہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی سائیں سرکار کی پیروی کرتے ہوئے رات 12 بجے سے صوبے میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کورونا کے حوالے سے مختلف نظام اور کام چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان قوم کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ کورونا سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام نہیں، قوم خود سے احتیاط کرے۔ تو دوسری طرف مراد علی شاہ اپنی دھن میں مگن، اپنی ہی لائن لیے ہوئے خود کو بہترین وزیر اعلیٰ ثابت کرنے میں لگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بجلی کمپنیز کو 5,000 روپے اور گیس کمپنیز کو 2,000 روپے یا زائد کے بل اگلے 10 ماہ قسطوں میں لینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اگلے 2 ماہ گیس اور بجلی کے کنیکشنز بھی نہیں کاٹے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب کے الیکٹرک کے علاوہ کیسکو، سیپکو اور دیگر کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جن صارفین کا بل 5,000 روپے یا زائد ہیں ان سے مہینے کا بل نہ لیں۔ یہ 5,000 روپے کا بل اگلے 10 مہینوں میں قسطوں میں وصول کیے جائیں۔ یہ ہدایت سوئی صدرن گیس کے لیے بھی ہے کہ جن صارفین کا بل 2,000 روپے تک کا ہے ان کا بل اس مہینے نہ لیا جائے بلکہ اگلے 10 ماہ میں قسطوں میں لیں۔
अगले 2 माह के दौरान सूबे में बिजली या गैस कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। छोटी दुकानों या घरों के मालिकान को भी हिदायत है कि वो किराए की वसूली में रियायत दें। वजीर आला सिंध का कहना था कि वफाकी हुकूमत को भी दरखास्त करेंगे कि वो भी पावर सप्लाई और गैस कंपनियों को गैस, फर्नेस ऑयल की सप्लाई जारी रखे। कोरोना वायरस ने मुल्क के मुआशी हब कराची को वीरान कर दिया। सिंध हुकूमत ने इस वायरस से बचने के लिए शहर की मार्केट्स, शॉपिंग मॉल और तिजारती मराकज़ बंद करा दिए हैं, लेकिन राशन और मेडिकल स्टोर्स को खुले रखने की इजाजत दे दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ सोलंकी। दुनिया भर की तरह कराची में भी कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस मोहल्लिक वायरस से शहरियों की जान महफूज करने के लिए हुकूमत सख्त इक़दामात उठाने में मसरूफ है। शहर की तमाम मार्केट्स, फूड स्ट्रीट और शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए हैं। ताहम शहरियों की सहूलत के लिए सिर्फ राशन और मेडिकल स्टोर्स खुले रखने की इजाजत दी है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने जो भी इक़दाम उठाए हैं वो उनसे मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। एहतियात करेंगे तो क्यों नहीं कमी आएगी। जैसे हुकूमत कह रही है, जैसे इमरान खान कह रहा है, सभी कह रहे हैं कि एहतियात करो और सब मिल के नहीं बैठो और घरों में रहो, करेंगे तो बिल्कुल आएगी। तो हमारे सामने जो है ना मिसाल मौजूद है ईरान की और इटली की। देखो उधर कितनी तबाही मची हुई है, उन लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। तो सबको संजीदगी से जो है ना सोचना चाहिए इस पर, और ये जो है ना ये मजाक नहीं है। सिंध हुकूमत ने कराची में कोरोना वायरस से बचने के लिए शहरियों को अपने घरों तक महदूद रहने और एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने की हिदायत जारी किए हैं। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। कोरोना वायरस के सबब वजीर आला पंजाब ने आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने का फैसला कर लिया। उस्मान बुज़दार का कहना है, मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में किसी किस्म की ग़िज़ाई किल्लत नहीं है। आज हमने डिसीजन किया है कि सेक्शन 245 के तहत हम पाक फौज की मदद तलब कर रहे हैं। 2 सेक्शन 45 के तहत इसमें जो पाक फौज होगी वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के लिए अवेलेबल होगी, और ये कोरोना वायरस के लिए खुसूसी तौर पर हमने पाक फौज की मदद तलब की, और पाक फौज ने भी हमेशा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हमारी मदद की है। और इस सिलसिले में मेरी आवाम से अपील होगी कि वह जो हुकूमती इक़दामात होंगे उनकी भरपूर तौर पर हमारे साथ ताउन करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और पंजाब के अंदर ये बताना चाहूँगा किसी किस्म की ग़िज़ाई किल्लत नहीं है, और हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पे अवेलेबल है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने भी कल से बैनुल अज़लाई दाखिला बंद करने का ऐलान कर दिया। कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद के बाद पूरे इलाके में नीम फौजी दस्ते तैनात करने का फैसला कर लिया है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। गुलाम अली वफा की रिपोर्ट देखिए। मुशीर इत्तलात शम्स मीर ने प्रेस ब्रीफिंग में 16 नए केसेस की तस्दीक करते हुए गिलगित बल्तिस्तान में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होम लॉकडाउन का ऐलान किया। उन्होंने कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान इंतजामिया और कानून नाफज करने वालों से तावन न करने की सूरत में फौज तलब की जाएगी। वज़ीर कानून औरंगजेब एडवोकेट ने डॉक्टर उसामा रियाज को खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर उसामा रियाज को कौमी हीरो करार दिया गया है। आज ये डेटा क्रॉस करके 71 पे चला गया। ये आउट ऑफ 315 आपको बता रहे हैं। ये वो डेटा है जो 315 लोग स्क्रीनिंग के मुख्तलिफ मरहलों से गुजरे हैं। 315 में से जो पॉजिटिव पेशेंट कंफर्म हो चुके हैं वो 71 हैं। वज़ीर कानून का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी और रेंजर्स, जीबी स्काउट्स और पुलिस के दस्ते तैनात किए जाएंगे, जबकि पाक फौज को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में लॉकडाउन के दौरान अशाई खुर्दनोश की दुकानें मखसूस वक्त के लिए खोली जाएंगी। इंटीरियर मिनिस्ट्री से चीफ मिनिस्टर साहब और जो भी हमारी SOP है उसके तहत उसकी फौज को तलब करने की भी मंजूरी ले ली गई है। अगले कुछ घंटों के बाद गिलगित बल्तिस्तान जो होगा उसको नाम दिया जाएगा होम लॉकडाउन का। हमारी अभी भी गुजारिश है कि आप एक मुहज़्ज़िब शहरी होने का सबूत दें, अपने घरों से बाहर ना निकलें। वज़ीर कानून के मुताबिक लोकल ट्रांसमिशन के मरीजों में 14 स्कर्दू और 2 का ताल्लुक जिला नगर से है और इन सब का कोई सफरी रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, अभी तक सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं किया गया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज की मदद तलब की गई है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट चूंकि पार्शल हमने लॉकडाउन किया हुआ है, गो कि मुकम्मल लॉकडाउन का अभी तक फैसला बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं किया। 3 हफ्तों के लिए
तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केटें, उन सब को जो है बंद कर दिया गया है। 10 या 10 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पे 144 के तहत पाबंदी आयद की जा चुकी है, जिस पे अमल दरामद किया जा रहा है। बहुत सारे जो सरकारी दफातर हैं वहां पर छुट्टियां दी गई हैं, स्कूल तालीमी इदारे ऑलरेडी बंद हैं, कारोबारी हजरात हैं, उनकी शॉप्स हैं, उनमें उनको भी बैन किया जा रहा है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोयटा में 24 शोरूम और 78 रेस्टोरेंट्स उनको सील कर दिया गया है। इस वक्त जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोयटा से N25 की तरफ वो मूव कर रहे थे, लखपास के मकाम पे उनको रोक दिया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा है सूबे में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 3 हो गई है। 24 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा, जबकि 7 रोज के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। मालबरदार गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। अपडेट जो इस वक्त तक है कोरोना वायरस के हवाले से वो भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। इस वक्त एक जो खातून थी जो जिसकी डेथ हुई थी, जो ताफ्तान से आई थी डीए खान में, जिसकी उम्र 65 साल थी और ताल्लुक उनका पड़चिनार से था, उसके जो टेस्ट भिजवाए गए थे उसमें भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया। इस तरह हमारे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो अमवात है उनकी तादाद 3 है और टोटल इनको मिलाकर 31 हमारे पास जो है ना वो मुस्बित पॉजिटिव आए हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि क्लोरोक्विन से कोरोना से महफूज रह सकते हैं। वायरस के इलाज के लिए क्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर राय ले रहे हैं। इसका कब और कितना इस्तेमाल करना है इसका तयन करेंगे। उन्होंने मुल्क भर में 646 केसेस की तस्दीक भी कर दी। क्लोरोक्विन खा लें तो आप कोरोना वायरस से महफूज हो जाएंगे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। लिहाजा ये गलत फहमी पे मबनी है और इस सिलसिले में हमें बिल्कुल अपना ज़हन जो है वो बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। हमने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है इस सिलसिले में हमारे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कि इसके स्टॉक्स के हवाले से और इसके इस्तेमाल यानी इसके बिकने के हवाले से कि ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अब नहीं मिल सकेगी और इस हवाले से दीगर कुछ हदायत जारी की गई हैं मैन्युफैक्चरर्स को भी और यूजर्स को भी। 664 जो कंफर्म्ड केसेस हैं उनका क्विक मैं आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में 152 152 पंजाब, 292 सिंध, 31 केपी, 104 बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान 55, एजे के 1 और इस्लामाबाद में 11। और आपको खबर देंगे कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर उसामा शहीद हो गए। डॉक्टर उसामा रियाज DHQ अस्पताल गिलगित में जेर इलाज थे। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि डॉक्टर उसामा कौमी हीरो हैं। कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर उसामा शहीद हो गए। डॉक्टर उसामा रियाज DHQ अस्पताल गिलगित में जेर इलाज थे। डॉक्टर उसामा कौमी हीरो हैं, ऐसा कहना है तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का। कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर उसामा शहीद हो गए हैं। डॉक्टर उसामा रियाज DHQ अस्पताल गिलगित में जेर इलाज थे। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि डॉक्टर उसामा कौमी हीरो हैं। गिलगित में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर उसामा शहीद हो गए हैं। डॉक्टर उसामा कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर उसामा रियाज डॉक्टर HQ अस्पताल में जेर इलाज थे। मोहम्मद अली आलम से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, इंतहाई अफसोसनाक जो खबर है आज जो महकमा इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है कि डॉक्टर उसामा कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते अपने जिंदगी से बाजी हार गए हैं, आज शहीद हो गए हैं। महकमा इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से इनको कौमी हीरो का जो लक़ब दिया गया है। वो जुगलोड के मुकाम पर जो कोरोना से मुतासर अफराद की स्क्रीनिंग कर रहे थे, पिछले दिनों वो बेहोश हो गए थे, जिसके वजह से उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गिलगित मुंतकिल कर दिया गया था और ICU में थे। तो आज इंतहाई अफसोसनाक खबर जो इंतकाल कर गए हैं, शहीद हो गए हैं। जी मोहम्मद अली आलम, आपका शुक्रिया। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कोरोना वायरस के खिलाफ चीन के किरदार को सराहने पर वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया है।
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیانیاؤ نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم عمران خان اور پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کے شکر گزار ہیں۔ عمران خان اور آرمی چیف نے کورونا وائرس کے خلاف چین کے کردار کو ذمہ دارانہ اور پرعزم قوم کے طور پر سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے پاکستانیوں سے کہا کہ چین کے تجربات کی پیروی کریں۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کورونا کے خلاف جلد از جلد کامیاب ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ سے ایران پر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کورونا کے انجام تک ایران پر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں۔ اپنے ٹویٹر بیان میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ انسانی بنیادوں پر صدر ٹرمپ سے ملتمس ہوں کہ کورونا کے انجام تک ایران پر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں۔ ایرانی عوام کو ناقابل بیان مصائب کا سامنا ہے کیونکہ بندشیں کورونا کے خلاف ایران کے مدافعتی کاوشوں کو نہایت منفی انداز میں متاثر کر رہی ہیں۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے انسانیت کو یکجا ہونا ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا اور کورونا کے بارے میں بات چیت کی۔ شاہ محمود قریشی نے ایران میں جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا اور بتایا کہ جرمنی نے یورپی یونین اجلاس میں معاملہ اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ایرانی ہم منصب جواد ظریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے مہلک وائرس سے جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ کورونا کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر ایرانی حکومت اور عوام قابل تحسین ہیں۔ وزیر خارجہ نے جواد ظریف کو ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کاوشوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جرمنی نے یورپی یونین اجلاس میں معاملہ اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قرض کے بوجھ تلے دبے ممالک کو سہولت دی جائے، ترقی پذیر ممالک کو قرضوں کی ادائیگی میں سہولت دی جائے۔ متاثرہ ممالک وسائل کو وبا سے نمٹنے کے لیے بروئے کار لا سکیں گے۔ سارک وزرائے خارجہ سے بھی پابندیوں کے خاتمے پر بات کروں گا۔ شہباز شریف نے پاکستان میں ایران کے سفیر کو خط لکھا ہے جس میں مہلک وائرس سے متاثر ہونے پر ایران اور ایرانی عوام سے اظہار ہمدردی اور یکجہتی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام تر تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ خط میں اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ عالمی برادری کو انسانیت کے ناطے ایران پر پابندیاں ہٹانا ہوں گی یا ان میں نرمی لانا ہوگی تاکہ ایران اس وائرس کے خلاف لڑ سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ایران کے سفیر سید علی حسینی کو خط لکھا ہے جس میں 19 مارچ کے خط پر شکریہ ادا کیا ہے۔ شہباز شریف نے ایران کے سفیر کو لکھے گئے خط میں ایران کے برادر عوام کو کورونا سے درپیش مشکلات پر دکھ اور پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں کورونا کے مشترکہ چیلنج اور بحران کا سامنا ہے۔ پابندیوں کی وجہ سے ایران میں کورونا سے پیدا شدہ صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی ہے۔ شہباز شریف نے ایرانی سفیر کی بات دہراتے ہوئے کہا کہ ایران کو کورونا کے مشترکہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی برادری کا تعاون درکار ہے اور نون لیگ سمجھتی ہے کہ ایران پر پابندیاں ناقابل قبول اور درپیش چیلنج کے مقابلے میں رکاوٹ ہیں۔ انسانی تکالیف کو دور کرنے کے لیے یکجہتی اور مدد کی ضرورت ہے، نہ کہ پابندیوں اور سزا کا راستہ اپنایا جائے۔ ہماری اولین ترجیح انسانیت کا مفاد ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے لکھا کہ کورونا وائرس سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ایران کے عوام کی معاونت کرنے کی ضرورت ہے۔ پابندیاں فوری ختم کی جائیں کیونکہ یہ انسانی زندگیاں بچانے کے نیک کام میں رکاوٹ ہیں۔ شہباز شریف نے اشعار کہنے کی روایت برقرار رکھتے ہوئے یہاں بھی سعدی شیرازی کے اشعار قلم بند کیے۔ شہباز شریف نے خط میں کہا کہ نون لیگ حکومت کو ایران پر غیر منصفانہ پابندیاں ختم کرانے میں کردار ادا کرنے کے لیے قائل کرے گی۔ برادر ایرانی عوام کی مدد ہمارا فرض ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور عالمی قوانین اور عالمی انسانی اقدار کی بالادستی کے ذریعے ایرانی عوام سے یکجہتی کرنا ہوگی۔ اسلامی ممالک کی طرف سے برادر ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی اور معاونت کا اظہار ہونا چاہیے۔ کورونا وائرس مشترکہ طور پر انسانیت کا دشمن ہے۔ متحد ہو کر اور عالمی برادری کے تعاون سے ہی اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف لندن سے واپسی کے بعد قرنطینہ میں چلے گئے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں گھر کے کمرے تک خود کو محدود کر لیا ہے۔ کہتے ہیں آزمائش میں قوم کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ نواز شریف کا بھی پیغام ہے کہ قوم متحد رہے۔ جانتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی اور قائد اور لیڈر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے علاج کے حوالے سے لندن گیا ہوا تھا اور میں وہیں پر ٹھہرا ہوا تھا کیونکہ ان کا جو ہارٹ کا جو پروسیجر ہے ابھی ہونا ہے۔ وہ ڈاکٹر جو تھا متعلقہ وہ چھٹی پہ تھا، وہ اب آ گیا ہے اور اس نے اپائنٹمنٹ جلد دینی ان کو۔ اور میاں صاحب کی جو ہارٹ کی جو انفیکشن ہے وہ بہت ضروری ہے ان کی صحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج پاکستان اور
पूरी कौम एक बहुत बड़े इम्तहान से गुजर रही है और मैंने फिर मियाँ साहब ने, हम दोनों ने मशवरा किया कर यहाँ पर जो एयर स्पेस बंद कर दी गई थी आज से, तो फिर मियाँ नवाज साहब ने मुझे कहा कि तुम वापस लौटो और इंशाअल्लाह इस आजमाइश के वक्त पूरी कौम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम इस एक जो मैं इसको आफत कहूँगा इसका मुकाबला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं लॉकडाउन की मुखालफत नहीं करते, हालात का तकाजा है, अस्पतालों में जगह कम है, हुकूमत तन्हा इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकती, यामिया उजरत पर काम करने वालों को राशन दिया जाए। मैं अपनी हुकूमत से कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन की भी हम मुखालफत नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हालात का तकाजा है, लेकिन इसके साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि लॉकडाउन से पहले उन तमाम लोगों के घरों तक कम से कम 15 दिनों का खाना पहुंचाने का अहतमाम करें। हर जगह ताने मौजूद है, हर जगह सरकार का अमला और दफातर मौजूद है और इन तमाम दफातर और अमले को इस्तेमाल करके इमरजेंसी बुनियादों पर हर घर तक एक मतलूबा मकदार में जितनी दिनों के लॉकडाउन है, तो ख़ासकर जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो रोज़ाना दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन लोगों के घरों तक खुराक का सामान पहुंचाने का अहतमाम करें। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने भी अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील करते हुए कहा है कि तकलीफ फैलती है तो घरों में नमाज पढ़ें, जिसका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है। ये तकलीफ फैलती है तो अपने घरों में नमाज पढ़ें। मेरे नबी ने बारिश के वक्त कह दिया था बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से, सल्लू फी रिहालिकुम, कि ऐलान करो कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। तो मेरी ये मुख्तसर दरख्वास्त है, पूरी दुनिया एक संगीन सूरत हाल की लपेट में है, हम इसे आसान न समझें, हम अपनी मदद करें, हुकूमत की मदद करें, दूसरों की मदद करें, पूरी एहतियात करें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, एहतियाती तदबीर करें, बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करने की अपील की है। पाकिस्तानी बहन भाइयों, इस वक्त हम जिस वबाई बीमारी के घेरे में आ चुके हैं, अगरचे अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर बहुत करम है और जिस तरह बहुत सारे ममालिक इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, हम उस तरह नहीं हैं, लेकिन हालात का सामना करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं और जो हिदायत वजारत सेहत की तरफ से दी जा रही हैं और सरकारी इदारे जिन हिदायत को अवाम तक पहुंचा रहे हैं, उन पर वो अमल करना ज़रूरी और वाजिब है और उन हिदायत की मुखालफत हराम है, क्योंकि इन हिदायत की मुखालफत की वजह से अगर एक आदमी को भी नुकसान पहुंचा तो जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि गोया कि उसने पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचाया। एक आदमी को अगर कोई जिंदा करने का और उसे बचाने का सबब बनता है तो गोया ऐसे है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो हमारी तमाम बहन भाइयों से ये अपील है कि वो इन एहतियाती तदाबीर को मामूली तसव्वुर न करें और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, अपने गुनाह की तौबा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द बहुत ज्यादा करें, दरूद शरीफ बहुत ज्यादा पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का विर्द बहुत ज्यादा करें, अपने आप को साफ सुथरा रखें और हाथ मिलाने में एहतियात करें, किसी से हाथ न मिलाएं और हाथों को बार बार धोते रहें
और जो तफसीली हिदायत आई हैं, हर एक उन हिदायत को अपने पास लिख कर रखे और अपने सामने रखे, उन हिदायत पर अमल करे, खुद भी अमल करे, दूसरों को भी अमल करने की तलकीन करे, क्योंकि अपने आप को बचाना भी जरूरी है और दूसरों की हिफाजत भी करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इस वबाई बीमारी का मुकाबला करने की तौफीक दे और जो बीमार हैं अल्लाह उनको अपने हबीब और अपने हबीब की आग अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में जल्द शफा अता फरमाए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि दुनिया के कोने कोने में कोरोना वायरस फैल गया। वायरस ने 188 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई है। चीन से फैलने वाली आलमी वबा दुनिया भर में पहुंच गई। इटली में कोरोना वायरस ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। हजारों अफराद मौत को गले लगा चुके। अमेरिका में भी वायरस तेजी से फैल रहा है। मुतासरा अफराद की तादाद 27,000 के करीब है, जबकि 350 के करीब अमवात हो चुकी हैं। चीन ने काफी हद तक वायरस पर काबू पा लिया है। आज दिन में सिर्फ 6 अफराद की अमवात हुई, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 3,000 से जायद है। ईरान में 1,700 के करीब, स्पेन में 1700 से जायद और फ्रांस में 600 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानवी वजीर आजम ने कोरोना मरीजों को मुफ्त तिब्बी इमदाद देने का ऐलान किया है। बरतानिया में हलाकतों की तादाद 250 के करीब पहुंच गई है। अफ्रीका के मुतअद्दिद ममालिक में भी लॉकडाउन का आगाज कर दिया है। केसेस की तादाद 1,000 से बढ़ गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसका इतलाक आज से हो गया है। ये पाबंदी 16 रोज तक जारी रहेगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया। लगाई गई पाबंदी 16 रोज तक जारी रहेगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी अरब ने ट्रेनों, बसों और टैक्सियों समेत इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्रवासों को बंद कर दिया। कौमी इदारों में भी छुट्टियां दे दी गयी, जबकि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे पहले से ही बंद हैं। तमाम बड़े शॉपिंग मॉल्स और तफरीही पार्क बंद कर दिए गए। मुमलिकत की तमाम बड़ी सुपर मार्केट्स में वाफुर मिकदार में रोजमर्रा जिंदगी के अशाए खुर्दोनोश मौजूद हैं। मुमलिकत भर में क्लिनिक, फार्मेसीज और अस्पताल खुले रहेंगे, जबकि हेल्थ स्टाफ 24 घंटे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव शदीद होने के बावजूद आलमी मईशत पर इसके असरात आर्जी नौयत के होंगे। वबा के नतीजे में पैदाशुदा सूरत हाल से निमटने के लिए मरबूत इक़दामात की जरूरत है। IMF के शोबा फंड, स्ट्रेटजी और रेवेन्यू के सरबराह मार्टिन मोहलिसन ने इंटरव्यू में कहा है कि कोरोना वायरस के आलमी मईशत पर शदीद असरात मुरतब होंगे, लेकिन इनसे निमटने के लिए मुतल्लिका हुकूमतों या मरकजी बैंकों को मरबूत इक़दाम करने होंगे। उनका कहना था कि हम कोरोना बहरान का शिकार हो चुके हैं, लेकिन आलमी मईशत पर इसका बहुत कम असर पड़ा है, जिसकी वजह से मुस्तहकम मईशत और रोजगार की निस्बतन बेहतर शरह है। तवक्को है कि आइंदा माह तक इससे बच निकलने में कामयाब रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये बहरान ऐसे वक्त आया जब हम इस तरह के झटके के काबिल हो चुके हैं। इसके असरात आलमी मईशत पर यकीनी तौर पर सख्त होंगे, तो हम उम्मीद है कि हम आइंदा माह तक इससे निकलने का रास्ता निकाल लेंगे। मार्टिन मोहलिसन ने कहा कि दुनिया भर में हुकूमतों और मरकजी बैंकों ने कोरोना से मुतासरा मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कारोबारी सरगर्मियों के फरोग वास्ते दीगर इक़दाम उठाए हैं, जिससे कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। अमेरिका पर कोरोना वायरस बनाने का इल्जाम। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनी की अमेरिका पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, कौन सा आकिल अमेरिका की मदद कबूल करेगा। ईरानी कौम से खिताब में रहबर मुअज़्ज़म ने अमेरिका को झूठा और मक्कार करार दिया और कहा, कौन सा आकिल कोरोना वायरस बनाने वाले अमेरिका की मदद कबूल करेगा। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी ने अल्लाह ताला की बारगाह में ईरान की सरफराज और अजीम कौम और तमाम इंसानों के सर से कोरोना वायरस की बीमारी को दूर करने की दरख्वास्त की और सेहत के हुक्काम के तमाम दस्तूरात पर अमल की जरूरत पर जोर दिया। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी ने फरमाया, इस साल हम हरम मुतहर में हाजिर होने और ज़ायरीन और मुजाविरीन से मुलाकात करने से महरूम हो गए, लेकिन हमारा दिल हमेशा की तरह इमाम अलैहिस्सलाम से मानूस है। अवाम को एक बार फिर ईद बइसत, ईद नौरोज, बहार और नए साल की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश की और फरमाया, बइसत का अजीमुल शान वाक़या बड़ी अहमियत का हामिल है। कुरान मजीद के इरशाद के मुताबिक अल्लाह ताला ने तमाम बुजुर्ग अम्बिया अलैहिस्सलाम से मिसाक लिया है कि वो खातिमुल अम्बिया की बइसत के वक्त उन पर ईमान लाएं और अपनी उम्मतों को भी उन पर ईमान लाने और उनकी मदद करने की सिफारिश करें। कोरोना वायरस गाफिल इंसान का दुश्मन लेकिन जिंदगी का दोस्त। वायरस की दहशत से जिन मुल्कों में लॉकडाउन किया गया, साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक उन मुल्कों और शहरों की आबो हवा में बेहतरी आई है। नदियों का पानी साफ और आसमान का असल रंग बहाल हो गया।
ज़हमत कभी कभी रहमत भी बनकर आती है। कोरोना की दहशत ने इंसानों के हाथ बांध दिए। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से लॉकडाउन करने वाले ममालिक में हवा की क्वालिटी में बेहतरी आई है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा की जानब से जारी NO2 तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि फरवरी के महीने में चीन के शहर वुहान की फिजा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिकदार में वाज़ेह कमी हुई। कोरोना लॉकडाउन की वजह से शुमाली इटली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के अखराज में काबिल जिक्र कमी रिकॉर्ड की है। यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी ने इसी तरह की तब्दीली बार्सिलोना और मैड्रिड में रिकॉर्ड की है, जहां हुकाम ने मार्च के वस्त में कोरोना की वजह से लोगों को घरों के अंदर रहने के अहकाम दिए थे। कैलिफोर्निया, फ्रांस और त्यूनिस में लॉकडाउन की वजह से हवा की क्वालिटी में बेहतरी देखी गई है। साइंसदानों का कहना है कि हवा की क्वालिटी में तवील मुद्दत के लिए बेहतरी के बारे में कुछ कहना कब्ल इस वक्त होगा। कराची में कोरोना वायरस से बचने के लिए जहां सिंध हुकूमत ने शहर को लॉकडाउन किया है, वहीं इस मुहलिक वायरस से बचाव के लिए शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतियाती तदाबीर से मुतालिक कैंप्स भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। चीन में जन्म लेने वाले कोरोना वायरस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत सिंध इस वायरस से बचने के लिए सख्त इंतजामात करते दिखाई दे रही है। शहर की अहम शाहराहों पर कैंप लगाए गए, जहां पर शहरियों को हाथ धोने का तरीका समझाया जा रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले कैंप पर मौजूद रजाकार शहरियों को सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल का तरीका बता रहे हैं, ताकि लोग अपने अहल खाना को भी कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदबीर बता सकें। 20 सेकंड तक जिस तरह हमने आपको हाथ धुलवा के दिखाए, हाथ धुलवाएं, मास्क लगाएं, घरों में महदूद रहे, जो गवर्नमेंट कह रही है उस पर अमल दरामद करें। एहतियाती तदबीर लाजिम है बिल्कुल। कैंप में हाथ धोने वाले शहरियों ने भी सिंध हुकूमत के इस इकदाम को सराहा है। बहुत अच्छे इकदाम है, अपने घरों में, अपने बच्चों में, बाजार से खरीदे साबुन और इस तरीके की चीजें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऐसे इकदाम किए। आवाम से भी अपील है कि वो घर में रहें और हर चीज़ से परहेज करें, किसी से गले ना मिलें, हाथ नहीं मिलाएं, हर चीज से एहतियात बरतें। रजाकारों का मजीद कहना है कि बार बार हाथ को अच्छी तरह धोने से इस वायरस से बचा जा सकता है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। लाहौर के टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर में बुखार, जुकाम और खांसी के मरीज भी एक ही जगह चेकअप करवाने पर मजबूर हैं। कोरोना की अलामात वाले मरीजों के लिए कोई अलग से इंतजाम नहीं किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद कमाल। कोरोना के फैलाव के खदशे के बावजूद हुकूमत ने तिबी माहिरीन के अलग फ्लू क्लिनिक बनाने की तजवीज को नजरअंदाज कर दिया। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर में मरीजों के रश में ही बुखार, खांसी और जुकाम के मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों में रोज बरोज इजाफे के बावजूद टीचिंग अस्पतालों में इंतजाम अधूरे हैं। तिबी माहिरीन ने हुकूमत को सरकारी अस्पतालों के आउटडोर से अलग फ्लू क्लिनिक बनाने की तजवीज दी थी, लेकिन हुकूमत ने इस पर ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में मरीजों के रश में ही बुखार, खांसी और जुकाम के मरीजों का चेकअप जारी है। ये अलामात कोरोना के मरीजों जैसी हैं, लेकिन इनके इलाज का अलग से कोई इंतजाम मौजूद नहीं। लाहौर में कोरोना वायरस के कन्फर्म मरीजों की तादाद 21 हो गई है, जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 152 तक जा पहुंची है। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ अहमद कमाल, सच न्यूज, लाहौर। जिला इंतजामिया लाहौर ने महंगे दामों मास्क फरोख्त करने वाले प्रोडक्शन यूनिट्स को सील और जाली हैंड सैनिटाइजर्स बनाने पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पंजाब हुकूमत की हदायत पर जिला इंतजामिया लाहौर मुतहर्रिक शहर के नवाई इलाके बागड़िया में ओवर चार्जिंग की शिकायत की इतला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान नसूल्ला रांझा की जेर निगरानी कार्रवाई करते हुए प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया और 20,000 मास्क कब्जे में ले लिए। जिला इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह पैगाम है कि जखीरा अंदाजों के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन किया जाएगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार कर जखीरा अंदाजों को बेनकाब किया जाएगा। सदर कैंट में भी जिला इंतजामिया की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई और जाली सैनिटाइजर बनाने पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मर्जिया सलीम की निगरानी में हैंड सैनिटाइजर के प्रोडक्शन यूनिट में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और सैनिटाइजर जब्त कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की खुसूसी हदायत पर कार्रवाइयाँ की जा रही है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ सैयद वकाब हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। मुल्तान में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की गर्ज से तमाम तिजारती मराकज और दुकानें बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी बहुत कम है, जबकि ज़ायरीन के एहतजाज के बाद करेंटीना की सफाई का अमल भी शुरू हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ।
कोरोना वायरस फैलाव के खदशे के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से मार्केटों और दुकानों को बंद करने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। मुल्तान में इस वक्त तमाम तिजारती मराकिज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी निहायत कम है। अशियाए खुर्दोनोश और ज़रूरिया के अलावा तमाम मार्केटें और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद हैं। दूसरी जानिब मुल्तान के करंतना मरकज़ को मुकम्मल तौर पर साफ करने के लिए वहाँ की धुलाई शुरू कर दी गई है। रेस्क्यू एहलकार करंतना की मुकम्मल तौर पर सफाई कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्तान के करंतना मरकज़ में नामुनासिब सफाई की सुथराई और बिजली की बंदिश समेत दीगर सहूलियात की अदम फराहमी पर वहाँ के रिहाइश पजीर ज़ायरीन की जानिब से एहतजाज भी सामने आया था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन भी किया जा सकता है, जिसमें मुमकिना तौर पर शहरियों को घरों में रहने पर पाबंद किया जा सकता है। शहर में मजीद ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के 2 हॉस्टल्स को भी करंतना के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए खाली करवा लिया गया है। इंतज़ामिया ने अवाम को हुकूमत से ताउन करने की अपील की है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। मुल्क में कोरोना वायरस के सिलसिले में हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र यौम पाकिस्तान के मौके पर कौमी तक़सीम एजाज़ात की तक़रीबात मनसूख कर दी गईं। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। एक और बड़ा इक़दाम उठा लिया गया है। मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब तक़सीम एजाज़ात मनसूख कर दी गई है। कौमी एजाज़ात की मरकजी तकरीब ऐवान सदर में होना थी, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शख्सियात को अस्करी और सिविल एजाज़ात से नवाजना था। ऐवान सदर के तर्जुमान की तरफ से भी मरकजी तकरीब मनसूख किए जाने की तस्दीक कर दी गई है। उधर तमाम सूबों के गवर्नर हाउसेज में होने वाली तक़सीम एजाज़ात की तकरीब भी नहीं होंगी। काबीना डिवीजन हुकाम के मुताबिक ये तकरीबात सूरत हाल बेहतर होने पर मुनक्किद की जाएंगी। इससे कबल यौम पाकिस्तान पर होने वाली सरकारी तकरीब भी मनसूख की जा चुकी है। थोड़ी सी समझदारी और एहतियात से कोरोना का मुकाबला किया जा सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ तहरीक में हुकूमत का साथ दें। इस वायरस को संजीदा लिया जाए और एहतियात बरती जाए। शोबिज़ स्टार्स ने अवाम से अपील की है कि अपने हाथों को मुसलसल धोएं और घर से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर ही इस मूजी मर्ज से बचाव का वाहिद जरिया है। कि मर्ज मैं मुल्क अंदर आख्त शुदा कमा यश में बलूचिस्तान मुतासर है, मैं सिंध मुतासर है, मैं पंजाब मुतासर है, मैं खैबर पख्तूनख्वा मुतासर है, मैं गिलगित बल्तिस्तान मुतासर है। नी यके गुशा है कि एहतियात के हस्ते हम इलाज अशवदिक बेहतर है, कुछ एहतियात करें। मेरी रिक्वेस्ट है अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि खुदारा इन लोगों के लिए एक्शन लें जो सैनिटाइजर और मास्क ब्लैक में बेच रहे हैं या उन्होंने जखीरा अंदोजी कर ली है, उनके लिए सख्त एक्शन लिया जाए। और साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो सैनिटाइजर और मास्क फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सब पर एक ऐसा वक्त आया हुआ है जहां बेहद एहतियात की अशद जरूरत है। मेहरबानी करें, अपने हाथ बार बार धोएं और कोशिश करें कि अगर आप दूसरों से मेल जोल ना करें तो यही बेहतर होगा। सबसे पहले तो अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड आपने धोना है अच्छी तरह, या अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के साथ साफ करना है। और जहां भी ये हाथ टच होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बार बार साफ करने हैं, वो जर्म्स कहीं भी आ सकते हैं। आपकी और हमारी जरा सी एहतियात बहुत से लोगों को मरने से भी बचा सकती है। बहुत ही सिंपल एक सेंस डेवलप करने की जरूरत है अपने आप, और वो ये है कि यू नॉट सपोज टू शेक हैंड्स विद पीपल, हाथ ना मिलाएं। मर्द हजरात हाथ ना मिलाएं, औरतें गले मिलाएं, और अगर कोई आपसे गले नहीं मिलना चाहता तो बुरा मत मानिए। इस वक्त जो हालात हैं, हमें इस चीज से परहेज करना चाहिए। हमें हाथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए, और हो सकता है वो बुरा भी माने, लेकिन आपको उनको एजुकेट करना जरूरी है। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है, थोड़ी सी समझदारी और एहतियात से। उधर मकबूजा कश्मीर में जिंदगी कैद हुए 231 रोज हो गए। वादी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। कोरोना मरीजों के इत्तलात के बाद सूरत हाल जूं की तूं, कश्मीरी खुराक और अद्वियात से महरूम हैं। 7.5 माह बाद भी मकबूजा वादी के निहत्ते मजलूम कश्मीरी काबिज भारतीय फोर्सेज के जबरी लॉकडाउन का शिकार हैं। वादी में जिंदगी सिसक रही है। अद्वियात और खुराक की किल्लत ने 90 लाख मुसलमानों को मौत से करीब कर दिया है। मौसमी तब्दीलियों और बीमारियों का मुकाबला करते हुए कश्मीरियों को नई परेशानी का सामना है। दुनिया को मुतासिर करने वाले मोहल्ले कोरोना वायरस ने वादी में भी पंजे गाड़ दिए हैं। इस 7 माह से काबिज भारतीय फोर्सेज के मुजालिम सहते मजलूमों के दुखों में इजाफा हो गया है। जानलेवा वायरस से बचाव के लिए कश्मीरियों को कोई
सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। वादी में ज़राए मवासलात ब्लॉक हैं, मार्केट दुकानें बंद हैं, सड़कों गलियों चौक चौराहों पर कड़े पहरे हैं। अरसे दराज से मजलूमों पर जुल्म ढाने वाली मोदी सरकार से किसी अच्छे की उम्मीद और तवक्को रखना भी खाम ख्याली ही है। आलमी बरादरी भी तमाम तर हालात जानने के बावजूद खामोश तमाशाई बनी बैठी है। कभी हाँ कभी ना, MQM ने अपनी रिवायात न तोड़ी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने काबीना में वापसी का ऐलान कर दिया। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हमने एक बार फिर से काबीना का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हुकूमत ने MQM के सामने घुटने टेक दिए। तहरीक इंसाफ के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। कन्वेयर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमने काबीना का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। हमारा तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद याद रखा जाएगा। उनका कहना था कि MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहादी और हुकूमत का हिस्सा हैं। MQM के तहरीक इंसाफ के साथ जो मुआहदे थे वो हतमी शक्ल में आ गए हैं। अमीनुल हक वजीर जबकि फैसल सब्जवारी मशीर होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM और PTI का इत्तेहाद शहरी इलाकों के लिए एक यादगार दौर के हवाले से याद रखा जाएगा। मालूमात को हतमी शक्ल देने के लिए तहरीक इंसाफ का वफ्द MQM पाकिस्तान मरकज आया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पानी अल्लाह ताला की अनमोल नेमत है। आबी वसाइल को बरूएकार लाकर वतन अजीज को दुनिया का खुशहाल तरीन और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जा सकता है। पाकिस्तान ज़राई, मादनी और शानदार कुदरती खजानों के साथ बेहतरीन आबी वसाइल से मालामाल है। पानी के कम होते ज़खायर को महफूज बनाना कौमी जिम्मेदारी है। पानी के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हुकूमत की जानिब से आने वाली नस्लों के लिए नए आबी ज़खायर बनाने के अज़्म का अयादा किया। हमारी हुकूमत सूबे में पानी को बचाने के लिए डैम्स बनाने के मंसूबों पर काम कर रही है। डैम्स बनने से हजारों एकड़ अराजी को बंजर होने से बचाया जा सकेगा। डैम्स और आबी ज़खायर बनने से ज़ेरे जमीन पानी का लेवल भी बुलंद होगा, जबकि छोटे डैम और आबी ज़खायर बनाकर पीने के पानी की जरूरियात को पूरा करेंगे। छोटे आबी ज़खायर के प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होंगे। पानी कीमती असासा है, इसे किसी कीमत पर जाया नहीं होने देंगे। पानी का ज़िया रोकने के लिए हमारी हुकूमत सख्त इकदाम कर रही है। शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो पानी को किफायत से इस्तेमाल करें। आज की बचाई हुई एक बूंद कल की नस्लों के काम आएगी। वर्ल्ड वाटर डे को मनाने का मकसद अवाम में पानी की अहमियत और जरूरत और अफादियत के बारे में शऊर को आम करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में पानी की अहमियत को उजागर करना और इसकी बढ़ती हुई कमी का एहसास दिलाना है। इस साल इस दिन को पानी और गंदे पानी के उन्वान पर मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए माहौलियात और तरक्की की तस्दीक के बाद 22 मार्च 1993 को पहली बार पानी का आलमी दिन मनाया गया। कुरे अर्ज पर जिंदगी का दारो मदार पानी पर है, मगर बदकिस्मती से धरती पर पानी की मिकदार रोज बरोज कम होती जा रही है। तरक्की पजीर मुआशरों को कमजोर इक्तसादियात और बढ़ती आबादी के बायस पीने के साफ पानी का हुसूल और तवानाई तक रसाई मुश्किल होती जा रही है। कुरे अर्ज पर 76 करोड़ 80 लाख अफराद को पीने के साफ पानी तक रसाई हासिल नहीं। 2.5 अरब अफराद को नकासी आब की बेहतर सहूलतें भी मुयसर नहीं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त हर शहरी के लिए 5600 क्यूबिक मीटर पानी था, जो अब कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर रह गया है। मुल्क भर में आज शब मिराज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर मसाजिद में शब मिराज के इज्तिमात नहीं होंगे। आज की शब को दीन इस्लाम में एक नुमाया और मुनफरिद मकाम हासिल है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम को अपने पास बुलाकर अपना दीदार कराया। मेराज कमाल मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो अजीम वाक़या है जिसने तस्खीर कायनात के मुक़फ़्फ़िल दरवाज़ों को खोलने की इब्तिदा की। इंसान ने आगे चलकर तहक़ीक़ व जुस्तजू के बंद कवाड़ों पर दस्तक दी और खला में पेचीदा रास्तों की तलाश का फरीज़ा अंजाम दिया। रात के मुख्तसर से वक्फे में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से न सिर्फ मस्जिद अक्सा बल्कि जुमला कायनात की इंतहा वुसअतों के उस पार काब कौसैन और अदना के मकामात बुलंद तक ले गया और आप मुद्दतों वहाँ क़याम के बाद उसी कलील मुद्दती जमीनी साथ में इस जमीन पर दोबारा जलवा अफरोज भी हो गए।
मेराज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से भिजवाई गई खुसूसी सवारी बुराक पर सवार होकर खालिक कायनात से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए थे और उम्मत के लिए 5 फर्ज नमाजों और रमजानुल मुबारक के रोजों का तोहफा लेकर आए। शब मेराज की बरकतें और रहमतें समेटने का बेहतरीन तरीका इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।